आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जीडी गोयनका स्कूल, विश्व स्तरीय शिक्षा का बिहार में एकमात्र स्कूल, सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता, केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस। Parents sending their child outside Bihar because of no good schools can now send their children in GD Goenka Public School in Ranipatra, Purnia, one of the best schools in the country, and help them become an all-rounder with their world-class facilities. The faculty at GD Goenka has been specially trained and called from outside to ensure high-quality education and to include practical studies. Apart from classroom studies, the students at GD Goenka put their learning in practical with the help of well-equipped labs. Beside academics, GD Goenka offers to a huge variety of extracurricular activities. Your child will have an opportunity to get well trained in horse riding, archery, shooting, squash, lawn tennis, billiards and basketball. Not only this, your child will even get an opportunity to enhance himself and herself in the field of music and dance. The students will get professionally trained to play various instruments like guitar, harmonium, flute. They will even learn various forms of dance like Bharatnatyam, Kathak, jazz and salsa. Your child will even have an access to a wide variety of books at GD Goenka's vast library where knowledge meets the student. The school provides a splendid facility of hostels for those who wish to stay in the campus, giving the environment of home away from home, is rich in nutrients, and there is a regular supervision over the quality of food, keeping in mind the health of residential and non-residential students. During summers, your child will not complain about the heat anymore, as GD Goenka is fully air-conditioned, so are its buses. At GD Goenka, the enthusiastic environment and the constant guidance from the teacher will set your child's future to a journey of success. As GD Goenka follows the ideology of no child left behind. To see your child prosper, please contact GD Goenka Public School, Matia Chowk, Ranipatra, Katia Purnia Road, Purnia. The toll-free number is 1800 3131 2222. The phone numbers are 76728 22222 or 23 or 24. सती सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल एलईडी लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट आरओ प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता, सती सिक्योरिटी, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 242570, मोबाइल 9297979700। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। केबीसी ब्रॉडबैंड, सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित केबीसी ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार या केबीसी न्यूज कार्यालय, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण। मैं हूं तरुण। कटिहार में लोकसभा चुनाव पूरे देश में हो रही है और इसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार कटिहार का सांसद
कैसा होना चाहिए, इसको लेकर आज हमारे साथ 4 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम परिचय कराते हैं। हमारे बाईं ओर राजीव जायसवाल बीजेपी के नेता हैं, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजना झा राजनीतिक एक्सपर्ट, और छाया तिवारी महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्षा, और आरजेडी नेता श्यामलाल अग्रवाल जी हैं। हम इन चारों का केवीसी में स्वागत करते हैं। हम बात करेंगे कटिहार में सांसद कैसा होना चाहिए, इसको लेकर लगातार हम मुद्दे की बातों में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को बुलाकर डिबेट करते हैं और आपका सवाल भी राजनीतिक पार्टियों से लेते हैं कि आखिर कटिहार की जनता क्या चाहती है, उसका मिजाज और वोट के प्रति मूड क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का चर्चा, और सबसे पहले बात करते हैं राजीव जायसवाल जी से, जो बीजेपी के नेता हैं। कई वर्षों से राजनीति में इनका जुड़ाव रहा है। राजीव जी, आपका केवीसी में स्वागत है। जी बताइए, कटिहार की जनता इस बार एनडीए को किस मुद्दे पर वोट करेगी? कटिहार की जनता वैसे नेता को चाहता है जो कटिहार के विकास में कटिहार के लिए काम आवे। आज का जो भी नेता, अभी तक जो भी हमारे एमपी थे, वो कटिहार में कम और दिल्ली के ज़्यादा रहा करते थे। यहाँ तक कि कटिहार के विकास में उनका कोई योगदान नहीं रहा। यहाँ तक मामला आया कि उनका जो अपना सांसद कोष होता है, वो कोष सही सही खत्म नहीं कर पाए, समाप्त नहीं कर पाए, कोई विकास का योजना नहीं चला पाए। तो आम पब्लिक को सांसद ऐसा चाहिए जो उसका विकास हो, वो उसके दुख सुख में रहे और कटिहार में रहे। क्या एजेंडा रहेगा इस बार आपके एनडीए का जो उम्मीदवार है कटिहार के लिए? हमारे सांसद का एजेंडा है कि कटिहार का विकास हो, कटिहार के जनता का विकास हो, और कटिहार के लिए प्लानिंग करें कि यहाँ योजना आवे, यहाँ बेरोजगारी खत्म हो, यहाँ लोग शिक्षित हो सके। चलिए हम इस सवालों को लेकर आरजेडी के नेता श्यामलाल अग्रवाल जी से बात करते हैं। श्यामलाल जी, आप आरजेडी से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि जो वर्तमान सांसद हैं तारिक साहब, वो कटिहार में रहते नहीं हैं, इसके वजह से लोग उनको वोट नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं केबीसी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 18 तारीख को कटिहार के मतदाताओं को इस चुनाव में भाग लेना है, जिसका प्रचार आपके द्वारा बराबर होते आ रहा है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, एनडीए के तो जो प्रत्याशी हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन यूपीए के जो प्रत्याशी हैं, 1977 से इस जमीन पर वो राजनीति शुरू की है। पहला चुनाव 1977 में कटिहार से लड़े और हार गए, और दूसरा चुनाव 1980 में वो लड़े और चुनाव जीते, और लगातार कई बार सांसद भी बने हैं और कई बार पराजय का भी मुंह उनको दिखना पड़ा है। लेकिन अपने सांसद काल में कटिहार में जितनी भी बड़ी चीज़ें, आज आप देख लीजिए नवोदय विद्यालय हो, आज आप देख लीजिए केंद्रीय विद्यालय हो, आज आप देखिए टीवी टावर हो, कटिहार बड़े पुस्तकालय, सबसे बड़ी जो मिर्चाई वाली चौक में पुस्तकालय, कई बड़ी योजनाएं। उस समय मीटर गेज थी, ब्रॉड गेज में बदलने का काम भी इन्होंने किया है। निश्चित रूप से ये जाने पहचाना चेहरा और कटिहार के प्रति समर्पित रहने वाला चेहरा। हमेशा ही कटिहार की जनता के व्यक्तिगत स्तर से भी इन्होंने बहुत काम कटिहार के लोगों का किया है। हम वापस इनके लिए वोट मांग रहे हैं कि इनके कामों को देख के, और राष्ट्रीय मुद्दे पर भी इनसे वोट मांग रहे हैं। लेकिन पहले हम कटिहार की भलाई के लिए और कटिहार में जो इन्होंने किया है अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद रहते हुए, निश्चित रूप से कटिहार की जनता इस पर विचार करेगी और आने वाले दिन में फिर अपना पूर्ण आशीर्वाद इनको देगी। चलिए छाया जी, आप ये बताइए कि जो भी श्यामलाल जी अभी बात बोल रहे थे, वो 2 दशक पहले की बात है, टीवी टावर की बात हो, सेंट्रल स्कूल की बात हो। इन 5 वर्षों में क्या लगता है आपको कि तारिक साहब के द्वारा कोई ऐसी योजनाएं की गई है जो आम लोगों को फायदा मिला हो? सबसे पहले तो मैं केबीसी के सभी को बधाई देना चाहती हूँ। आज चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और आज ये मुद्दे की बात
में मैं आई हूँ। और कटिहार की जहाँ तक समस्या है तो मुझे नहीं लगता है कि 5 वर्षों में हम लोग कभी सांसद का भी मुख देखे हों। सांसद जब बन जाते हैं तो किसी पार्टी और दल के बाद में रहते हैं, वो सांसद पहले कटिहार के रहते हैं। और पेपर के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि सांसद जी आए और आते हैं कि नहीं आते हैं। पेपर के माध्यम से हम लोगों को पता चल जाता है कि वो चले भी गए। पेपर के माध्यम से विकास कोई होने वाला नहीं है। आज जनता विकास चाहती है और हमारे मुखिया जो हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और आने वाले समय में हम लोगों ने तय भी किया है कि प्रधानमंत्री वही बनेंगे। लेकिन आज विपक्ष के बाद कोई ऐसी मुद्दा नहीं है कि उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो बहुमत के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। आज एक भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो बहुमत के लिए लड़ रही है कि वो बहुमत में आएगी, उसकी सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री भी तय है। लेकिन विपक्ष के बाद ऐसा कुछ नहीं है। अगर विपक्ष एक आध सीट कहीं से लाता भी है तो उसको विकास नहीं कर पाता है वो ठीक ढंग से। जो उसको विपक्ष का जो काम है कि जो पक्ष में है उसके कामों को, अच्छे कामों को सराहे, बुरे कामों को वो धरना प्रदर्शन के द्वारा जनता की समस्याओं को रखे। वो आज ऐसा कोई विपक्ष मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और कटिहार में जहाँ तक 5 साल तो हम लोग सांसद का मुंह ही नहीं देखे। चलिए, 5 साल तक सांसद का मुंह नहीं देखे हैं, ऐसा छाया तिवारी जी का कहना है। हमारे साथ महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजना झा जी हैं। जी बताइए, क्या लगता है मैडम कि पिछले 5 वर्षों में या फिर बीते 10-15 सालों में ऐसा क्या काम रह गया है जो कटिहार के लोगों के लिए होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाया? सर्वप्रथम तो मैं सभी केबीसी के दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। और देखिए, हम तो जब से यहाँ हैं तब से बीजेपी का भी सांसद रहे हैं और तारिक साहब भी रहे हैं। लेकिन मुझे कोई विकास में कोई अंतर बहुत नज़र नहीं आया दोनों में। बहुत जो समस्या आई थी उसमें विकास हो रहा है, बहुत स्लो प्रोग्रेस है, बहुत धीमा प्रोग्रेस है। इतना 5 साल में इतना कम काम, एक कुछ काम हुआ, छोटा मोटा काम, थोड़ा स्टेशन बन गया, थोड़ा उतना नहीं। इतनी समस्या है यहाँ पे, जाम की इतनी समस्या है। न्यू मार्केट तो जाने लायक नहीं रहता है। न्यू मार्केट कोई भी किसी भी सड़क से गुजरिए, किसी भी से एकदम आप जा नहीं सकते। तो आखिर बिल्डिंग जो पास होता है कैसे पास होता है? अगर वो पार्किंग नहीं बनाया तो आपने पास कैसे किया? वैसा घर कैसे पास किया? तो पार्किंग की बहुत समस्या। सब एक हॉस्पिटल हमारे यहाँ अच्छा नहीं है। दरभंगा देख लीजिए, बहुत बगल में ही है हमारा दरभंगा। हाँ, दरभंगा में देखिए पारस हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल आ गया। हमारे यहाँ एक भी ऐसा हॉस्पिटल, अगर रात को कोई पेशेंट सीरियस हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसको बाहर ही जाना पड़ेगा। एक हमारा मेडिकल कॉलेज है, वो भी सीरियस पेशेंट को नहीं लेता है। तो इस बात पे ध्यान देना चाहिए। सांसद जो भी यहाँ के जो भी पॉलिटिशियन, उनको ये देखना चाहिए कि क्यों ऐसे इतना अच्छा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है जहाँ से इतने बच्चे शिक्षित होकर निकलते हैं, वहाँ भी ऐसी सुविधा नहीं है कि जहाँ पेशेंट को भर्ती किया जा सके इमरजेंसी में। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को सांसद जो भी बने, कुछ नया चेहरा देखना हम लोग चाहते हैं कि कोई युवा बने, कोई नया चेहरा है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनको भी परख कर देखिए ये कैसा, हाँ ये कैसा काम करते हैं। हाँ चलिए, कटिहार का विकास होना चाहिए ऐसा। और ये तो लोकसभा का चुनाव ना, ये तो आपको सेंट्रल भी देखना पड़ेगा ना। आपको तो ये लोकल के लिए तो आपके पास जो है हमारे एमएलए भी हैं और भी छोटे छोटे जो हमारे एमपी हैं, उनको तो सेंट्रल में भी देखना पड़ेगा कि सेंट्रल में क्या है, कौन है, उसको देख के हम लोग को सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। राजीव जी, जैसा कि अग्रवाल साहब अभी बता रहे थे कि जो निवर्तमान सांसद रहे हैं तारिक साहब, उनके द्वारा कई ऐसे बड़े योजनाओं को कटिहार में लाया गया है। और क्या लगता है कि ये योजनाएं जो पिछले 5 वर्षों में उनका सांसद का कार्यकाल रहा, आपको कहीं ये दिख रहा है कि वो बहुत बड़ी प्रोजेक्ट कटिहार में लगने वाली थी, नहीं लग पाई या फिर आने वाली है? मान्यवर ने कहा कि तारिक साहब ने टीवी टावर ला दिए। टीवी टावर से हमारे युवाओं का और हमारा विकास नहीं होता है। रह गई बात सेंट्रल स्कूल की, विगत हमको लगता है कि 25 साल पहले वो सेंट्रल स्कूल यहाँ बना था। और सेंट्रल स्कूल इसलिए बना था कि यहाँ आवश्यकता था, नहीं था, उनका कोई योगदान नहीं था कि सेंट्रल स्कूल उन्होंने बनवा दिया। प्रयास तो कहीं नहीं, कोई प्रयास नहीं था। सेंट्रल स्कूल हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ सेंट्रल प्रोजेक्ट चलते हैं वहाँ खोला जाता है। मैं विगत दिनों उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ रहा हूँ, तो सेंट्रल स्कूल कैसे खुलता है ये मैं जानता हूँ। इसलिए उनको कहने से ये बात मैं नहीं जान जाऊँगा कि उनका ही प्रयास से खुला था। और विगत इधर 5 साल की बात है,
तारिक साहब का, ठीक मैडम छाया मैडम ने कही कि तारिक साहब कब आए और कब बारसोई गए और कब दिल्ली गए, पब्लिक को सिर्फ पेपर से पता चला है। कई बार सांसद रह चुके हैं कटिहार में, कटिहार के लोग नहीं उन्हें नहीं एकदम सही बात है। यहाँ के लोगों को ये पता नहीं है कि हमको विकास पर वोट करना चाहिए। यहाँ के लोगों ने किसी भेदभाव में वोट करते हैं जिससे उनका विकास नहीं हो पाता है। विगत 15 साल कोई और सांसद रहे, वहां भी कुछ मुद्दा था। विगत 5 साल से ये सांसद रहे, यहाँ भी किसी मुद्दे पर जीत जाते हैं, लेकिन विकास का मुद्दा पर एक भी सांसद नहीं आया, ना आज तक कटिहार का कोई विकास कर पाए। मैडम ने कहा कि जाम की समस्या। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेंद्र यादव जी। जी बताइए, आपको आपका क्या सवाल है और किनसे है? जी मेरा सवाल श्यामलाल अग्रवाल जी से है। मेरा नाम राजेंद्र जी आपका। जी मेरा सवाल यह है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू राजेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मुद्दे की बात आप सीधा प्रसारण केबीसी न्यूज पर आप देख रहे हैं। हमारे साथ आज खास 4 गेस्ट बैठे हुए हैं। हम एक बार फिर से इनका परिचय कराते हैं। राजीव जायसवाल जो बीजेपी के नेता हैं, डॉक्टर रंजना झा महिला रोग विशेषज्ञ और राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, छाया तिवारी पूर्व महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्षा रही है, और श्यामलाल अग्रवाल जी हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। राजीव जी बात कर रहे थे बड़े प्रोजेक्ट की, जिसमें आपका कहना है कि उनका तारिक साहब का कोई योगदान नहीं रहा, लेकिन लगातार वो सांसद रहे हैं, लोगों ने उनको चुना है। कहीं न कहीं लोगों के दिल में तारिक साहब होंगे तभी उनको सांसद बनाया। विगत 5 सालों में जो वो सांसद रहे, आज तक एक स्थानीय छोटा सा मुद्दा कटिहार में जो जाम का मुद्दा है, जो मैडम ने कहे वो मुद्दा आज तक, जबकि ऑटोमेटिक हमारा बस स्टैंड कहीं और चला गया है, इनके ये सांसद रहते हुए भी वो बस स्टैंड को शिफ्ट नहीं करा पाए। आज शहर में ऐसी स्थिति है कि आप 4 व्हीलर पर, 4 पहिया वाहन पर नहीं चल सकते हैं, या तो आपको मोटरसाइकिल पर चलना होगा या साइकिल पर चलना होगा। तो ये विकास हुआ कि हम आज देश राज्य कहाँ ऊपर जा रहा है और हम साइकिल पर चलने के लिए बाध्य हो रहे हैं। हमारा विकास वहाँ नहीं हो पा रहा है कि एक छोटा सा कोई भी समस्या इनके द्वारा हल किया जा रहा है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भोला मेहता जी। जी भोला जी बताइए, किनसे सवाल है आपका और क्या सवाल है? कांग्रेस के प्रतिनिधि से हमारी सवाल है। जी पूछिए। हेलो। हाँ जी पूछिए। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि तरुण जी, कि मैं कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मेरा क्वेश्चन यह है कि गौशाला ओवरफ्लाई और भगवान चौक से गौशाला तक 35 मिनट के अंदर में आ जाते हैं, और गौशाला से मिर्चावल जाने हम लोग को 1.5 घंटा का सफर करना पड़ता है। यह फ्लाई ओवर की मामला मैं स्थानीय सांसद से पूछना, तो कब यह समाधान हो जाएगा? एक और दूसरा जो कटिहार में जल जमाव की समस्या है, महागठबंधन के नेता आरजेडी के श्यामलाल अग्रवाल जी से यह कभी आज तक समाधान नहीं हुआ। गौशाला का आरोपी बनना है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भगवान चौक के पास भी हमेशा जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इस पर आपका क्या कहना है कि क्यों नहीं लोगों की आम समस्याओं से जुड़ा हुआ है, आज तक नहीं बन पाया? ये सवाल। देखिए, कल आप ही ने वर्तमान सांसद तारिक साहब को यहाँ बुलाया था और इस संबंध में कई सवाल उनके सामने रखे गए थे, और उन्होंने कहा 6 ओवरब्रिज कटिहार में बनना है, जिसमें 2 में काम शुरू हो चुका है, मनिया का और एक प्राणपुर के पास का। और जहां तक गौशाला के ब्रिज की बात है, यह भगवान चौक की ब्रिज की बात है, उसका टेंडर ऑलरेडी हो चुका है। सांसद जी ने प्रयास करके उसका टेंडर करवा दिया है। ठीक है, कोई भी काम में थोड़ा बहुत तो विलंब होता है, टेंडर की प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया में अब मान लीजिए कि साहेबगंज ब्रिज का शिलान्यास करके चल गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज तक तो एक ईंटा नहीं जुड़ा, तो उसका टेंडर हो चुका है। और निश्चित रूप से हम भी बोलते हैं कि वो ब्रिज बनना चाहिए। गौशाला का जो ब्रिज है, क्योंकि इतनी जाम वहां लगती है, मैं गौशाला की तरफ बराबर जाता हूँ, ये सिगरेटी गौशाला होने के नाते देखता हूँ कि कभी कभी आधा घंटा, 1 घंटा दोनों साइड काफी कितने दिन से ये टेंडर की प्रक्रिया हुई है?
कितने दिन से ये प्रक्रिया हुई है? प्रक्रिया तो पिछले जब एमपी थे निखिल चौधरी उस समय से बोल रहे थे। कल तारिक साहब ने भी कहा। तो बहुत बढ़िया बात आपने कहा कि निखिल चौधरी के समय से ही हुआ है। बोल रहे थे। अगर ये बात चल रही थी तो तारिक साहब एक दिन भी धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किए कि ये काम अविलंब स्टार्ट किया जाए? आज तक तो उनके तरफ से एक बयान भी नहीं आया कि अविलंब ये चालू किया जाए। कई बार अखबार में हम लोगों ने पढ़ा, कहीं नहीं आया। अखबार में पढ़ा है, ये बात तो होता है कि अखबार में पढ़ने वाले नेता का हम लोग तारिक साहब का कोई भी बात अखबार में पढ़ा जाता है। कोई धरना प्रदर्शन नहीं कि हाँ ये ब्रिज बनना चाहिए। क्या लगता है कि ये जो आरोपी बनना है, जो समस्याएं हैं, लोग यह जानने की कोशिश कर रही है कि कब तक बनेगी, किसके कार्यकाल में बनेगी, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, क्या उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, ये तो टेंडर हो चुका है। चुनाव के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव के बाद, अभी तो आप जान रहे चुनाव आचार संहिता लागू है, इसमें तो कोई प्रक्रिया विकास की होती नहीं है। ये चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया शुरू होगी। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए इनसे भी सवाल लेते हैं। क्या जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल राजीव जायसवाल जी से है। आगे अब कौन सी पार्टी में जाने वाले और अब तक कितनी पार्टी बदल चुकी? जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल राजीव जायसवाल जी से है। आगे वो कौन सी पार्टी में जाने वाले हैं और अब तक कितनी पार्टी बदल ली है? चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम पार्टी पूछे बात कर रहे थे जो पुल की समस्याएं थी, हम छाया तिवारी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कटिहार में बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पर है। कटिहार कभी उद्योग नगरी से पूरे देश में प्रसिद्ध था। कई नेता आज भी हैं, कई नेता पहले भी थे, कई सांसद पहले भी बने, हारे जीते, लेकिन जूट मिल की जो समस्याएं है वो आज आपके सांसद के कार्यकाल में भी पूरा नहीं हो पाया और वर्तमान के सांसद के कार्यकाल में भी वो सुचारू रूप से नहीं चल पाया। किसे आप दोषी मानते हैं? ये कटिहार का दुर्भाग्य है कि पिछले बार इस टर्म के पहले हमारे आदरणीय सांसद निखिल जी थे, तो उस समय सरकार नहीं थी, भारत सरकार भाजपा की नहीं थी, और नहीं तो ये समस्या आज नहीं होती। दूसरी बात, बेरोजगारी की आपने पूछा, तो अब तक पिछले करीब 60 वर्षों से जिस भारत की सरकार चल रही थी, तो वहाँ तो केवल बेरोजगारी ही बेरोजगारी दिखती है। आप एक अभी जो युवा लोग हैं वो पढ़ते हैं और कहते हैं कि मुझे मैडम अभी बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का प्रतिशत उसी पर आ रही हूँ। आप अगर रिपोर्ट देखेंगे हाँ, तो इसी पर आ रही हूँ। तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी बेरोजगारी को दूर करने के लिए आज युवा वर्ग पढ़ते हैं और उन्हें आप किसी जनरली युवा से पूछिएगा तो कहेंगे मुझे सर्विस चाहिए। वो ये नहीं कहते हैं कि मुझे अपना रोजगार भी चाहिए। इस अपने स्वरोजगार के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कई सारी योजनाएं चल रही हैं। मुद्रा योजना हो, चाहे युवा स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, कि छोटे छोटे जो किसान हैं, बेरोजगार हैं, चाहे वो छोटे मध्यम घर के बच्चे हों, उनको आज कारोबारी बनाया जाए, व्यापारी बनाया जाए, कैसे वो अपना विकास कर सकते हैं, उनको किस तरह से आर्थिक मदद दी जाए। कांग्रेस की सरकार में इस तरह के लोग व्यापार करते थे, आश्वासन केवल कांग्रेस की सरकार आश्वासन देती थी, साधन ग्राफ था, जो बेरोजगारी की ग्राफ था, वो साधन उपलब्ध नहीं कराती थी। आज की सरकार जो भारत सरकार है वो साधन उपलब्ध करा रही है। चलिए, हम रुकते हैं यहाँ पर। एक कॉलर हमारे साथ है, एसके तिवारी जी हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या सवाल है। जी बताइए, क्या सवाल है आपका और किन से है? हेलो 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 हेलो, बहुत कम आ रहा है, हम आवाज नहीं आ रही है जी। हेलो जी, पूछिए। हेलो, हाँ, मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से जी। जो समाज के निचले पैदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए उनका क्रांतिकारी कोई योजना है
जैसे कि सोनिया गांधी के समय में खाद्य सुरक्षा योजना के कारण समाज के पिछले पैदान पर बैठे लोगों को अनाज मुहैया होता है। इस तरह का कोई क्रांतिकारी योजना भारतीय जनता पार्टी के पास है जिससे समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को सीधे लाभ मिले? राजीव जी, ये मेरा सवाल है। भ्रम फैलाने का केवल बात न होना चाहिए, व्यवहारिक आपके सरकार के द्वारा लागू की गई, ये सवाल है इसके तिवारी। हमारी सरकार, भाजपा सरकार से इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के पास एक ऐसी योजना है जो अंतिम पैदान पर हैं, उन्हें मुफ्त में राशन देके खिलाने का आदत कांग्रेस का हो गया है। भाजपा सरकार मुफ्त में खिलाने के लिए नहीं आदत बना रही है। स्किल इंडिया के द्वारा आप करो और खाओ, आपको ट्रेनिंग देके, आपको शिक्षा देके आपको पैरों पर लागू खड़ा करने जा रही है और खड़ा करके आप अपने रोजगार को चलाएं और अपने परिवार को चलाएं। ये सरकार की ये योजना है कि अपने से कमाओ और अपने से खाओ, न कि खैराती खाना खाओ। क्या कहना चाहेंगे आरजेडी? नहीं, देखिए जो तिवारी जी ने जो प्रश्न किया, निश्चित रूप से मैं उनके प्रश्न का स्वागत करता हूँ। उस समय जब 1914 के पहले जब मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और अंतिम समय में उन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल लाया था, बिल्कुल, और जिससे कि गरीब लोगों के पेट में अनाज जा सके। 2 रुपया किलो में गेहूं और 3 रुपया किलो में चावल। आज आप बोलते हैं राजीव जी कि मुफ्त में खिलाने की आदत नहीं डालना चाहते। उज्ज्वला योजना की आपकी, आप फ्री में गैस सिलेंडर दे रहे हैं ना, वो खाना नहीं है। नहीं, आप पहले बात सुनिए, आप फ्री में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं फिर फ्री में गैस सिलेंडर? आप बोलते भी लोग को पैसा दीजिए और गैस सिलेंडर देंगे। ये सरकार की एक नीति होती है और उस नीति के तहत जो भी लोग निचले पावदान तक है उनको कितनी सहायता पहुंचा सके, ये सरकार का कर्तव्य होता है। इसलिए जो उन्होंने कहा, मैं उनकी बातों का बहुत स्वागत करता हूं कि निश्चित रूप से तिवारी जी ने एक अच्छे प्रश्न का। लेकिन बीजेपी का प्रतिनिधि का कहना है कि आदत नहीं लगनी चाहिए। अरे आदत हम पूछते कि हमने तो आज की स्थिति में 2 रुपया का अनाज खाते हैं तो हमको काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलता है। हम पूछते हैं गांव की स्थिति ये हो गई है कि मुफ्त का अनाज खाने के लिए लोग काम करने का चाहत नहीं रखते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसको मुफ्त में खाना मिल रहा है 2 रुपये में। ये योजना आपकी सरकार आएगी, ये योजना को खत्म करेगी जो आज 2 रुपया इसमें तो सुधार किया है। आगे सरकार ने सुधार किया है, इस पर बहुत तरह का सुधार किया है। कल्याणकारी योजनाएं हैं मोदी सरकार। देखिए कल्याणकारी योजनाएं सारी सरकारें चालू करती है। ऐसा नहीं है कि रोजगार के लिए पहले की भी सरकार लोन देती थी, इंडस्ट्री ऑफिस थी, लोग पैसा। उज्ज्वला योजना जो इन्होंने कहा, उज्ज्वला योजना के साथ देने के बाद उसके बाद क्या उसको फ्री में दिया जाता है? चलिए हम यहाँ एक कॉलर को लेते हैं। दिवाकर भगत जी है फोन लाइन पर, आइए इनसे जानते हैं। जी बताइए क्या सवाल है और किनसे है आपका सवाल? राजीव जायसवाल जी से सवाल है। जी पूछिए। राजीव जायसवाल जी से सवाल है। जी पूछा जाए। सवाल है कि जो बता रहे थे कि स्किल इंडिया, स्टार्ट इंडिया बहुत सारी स्कीम भाजपा लाई है, तो कटिहार में क्या क्या हुआ बतावे और कटिहार में आगे उनकी क्या योजना है करने की, ये बतावे। चलिए, स्किल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है उसके तहत कटिहार का बंद करा दिया गया और उद्योग धंधे के लिए उनकी आगे की क्या योजना है? क्या योजना है? जी आज विगत कई वर्षों से, विगत 5 वर्षों से हर एक वर्ष स्किल इंडिया का प्रोग्राम कटिहार में चलाया जाता है और चल भी रहा है, जिसके कारण मैडम का भी अस्पताल है। छोटे छोटे बच्चे, कोई डीएमएलटी, कोई पैथ लैब, उस तरह का योजना सीख के आते हैं और बच्चे आज पैर पर अधिक से अधिक कटिहार में काम कर रहे हैं, जिनका प्रमाण मैडम से पता चलेगा। 50,000 से लेकर 10 लाख तक की मुद्रा लोन योजना है, वो चल रही है। डॉक्टर रंजना झा से, मैडम कटिहार में उद्योग विख्यात था, लोग कटिहार को उद्योग नगरी के नाम से जानते थे। पिछले कई वर्षों से उद्योग में काफ़ी कमी ही नहीं बल्कि ख़त्म होने पर है, ख़त्म ही हो गया है, ऐसा हम लोग देखते हैं। आप लोग तो बहुत पुराने लोग हैं, आप लोग भी जानते होंगे, तो क्या वजह रहा कि कटिहार में उद्योग समाप्त हो गया?
इसके बारे में तो ज़्यादा अच्छा राजीव जायसवाल जी बाकी लोग ही बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है क्या जो बीच में जो बहुत परेशानी हुआ लोगों को, बीच में सरकार आई, लोगों को बहुत परेशानी हुआ, मुझे इसके बारे में ज्यादा डिटेल आइडिया नहीं क्यों ऐसा हुआ। नहीं, आपको लगता है कि ये बंद होने से बेरोजगारी बढ़ी है? इसमें तो कोई भी समझ सकता है, अगर कोई भी उद्योग चले तो बहुत रोजगार मिलेगा, लेकिन क्यों बंद हुआ, क्या कारण था बंद होने का, ये मुझे डिटेल में नहीं पता है मुझे जी। लेकिन आपको लगता है कि एकदम होना चाहिए, कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो क्या करेंगे लोग। कटिहार में उद्योग मैं रोज करीब 80-90 रोज देखती हूँ, सबका पति बाहर कमा रहा है, सबका जिसका भी है, सब दिल्ली बम्बई काम करे, इसका मतलब कुछ काम ही नहीं है। हम पूछते भी क्या जी यहाँ कुछ काम नहीं मिलता, तो सबका कहता है यहाँ कोई काम ही नहीं है, यहाँ कोई काम ही नहीं है। इतनी परेशानी होती है, 2 साल में 3 साल में वो लोग वापस आते हैं। तो यहाँ पे उद्योग होना तो बहुत ही जरूरी, कुछ भी नहीं है ऐसा चीज़। लेकिन एक चीज़ स्किल इंडिया के बारे में जो उन्होंने कहा, वो बहुत सरकार की बहुत अच्छी योजना है। मेरा भी ITI कॉलेज है, मेरा रेकमेंड, उसका भी इंटरनेट जो है सरकार से हो रहा है, उससे बहुत लोगों को लाभ है। तो दूसरे सरकार में भी इस तरह के लाभ आपको मिलेंगे। चलिए, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी पूछिए, क्या सवाल है, किनसे है आपका सवाल? दोनों पक्ष के लोगों से सवाल है मेरा। दोनों पक्ष के लोगों से सवाल है कि 15 साल विगत 15 साल में भाजपा के MP रहे, विगत 5 साल से NDA के MP हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय कम्युनिस्ट तारिक साहब रहे हैं। लेकिन इन 20 वर्षों में कांग्रेस में कटिहार में एक भी बड़े उद्योग की स्थापना नहीं हुई, बड़े और कटिहार 3 नदियों से घिरा हुआ जगह है। चलिए, बाढ़ प्रबंधन के लिए इन नेताओं ने क्या किया, दोनों पक्ष के लोग बताएं इस पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम अग्रवाल जी से जानना चाहेंगे कि 15 साल बनाम 5 साल और पहले भी कई बार सांसद रह चुके हैं, यहाँ बाढ़ सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उद्योग की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जिससे लोग बेरोजगार हैं। जब बाढ़ आती है तो लोग पलायन करने को मजबूर होते हैं। इस तरह के योजनाओं के लिए आपकी सरकार, आपके जो सांसद हैं, क्या प्रोजेक्ट लाए हैं या फिर क्या उनके लिए खास है ये उद्योग के लिए, और जो बाढ़ से पलायन होते हैं, जो पुनर्वास की जो समस्या कटिहार में लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, कटाव की निश्चित रूप से समस्या है, और कटाव की समस्या को पिछले दिनों में भी मनियारी के बागमारा गांव में किया था, और लगातार 5-6 दिन हम लोगों ने मीटिंग करके और सरकार से मांग की थी कि जो स्थिति आज कटाव की हो रही है, आने वाले कुछ वर्षों में ये गांव का गांव कटाव में चला जाएगा। तो हम लोगों ने एक विपक्ष के नाते भी हमेशा सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया है। जहाँ तक उद्योग की बात है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब ये सरकार बनी केंद्र में, इस सरकार ने एक आयोग जो था, योजना आयोग, जो किसी चीज के लिए योजना बनाता था, और उस योजना आयोग का नाम रख दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब है कि तुरंत फैसला, जूट मिल, RBHM जूट मिल। कोई जमाने में जो यहाँ के सांसद थे जुराज जी, उन्होंने नेशनलाइज करवाया था, सरकार के अधीन उस जूट मिल को करवाया था। और अभी हमारे सारे प्रतिनिधि, इस जिले के सारे राजनीतिक दल के नेतागण कई बार जूट मिल के लिए आंदोलन भी किए, पटना गए, दिल्ली गए। जब नीति आयोग ने डिसीजन ले लिया कि हमको बीमार उद्योग को चलाना ही नहीं है, ये कोई सरकार का काम नहीं है। जिस सरकार ने उसको लिया है और आप बोलते हैं कि साहब चलाना नहीं है, खुलने की कोई संभावना ही नहीं, नीति आयोग का डिसीजन है, नीति आयोग का डिसीजन है। योजना आयोग रहती तो उस पर योजना बनाती, लेकिन नीति आयोग भी अग्रवाल साहब नहीं है, कोई नहीं, ठीक है, ये बात ठीक है कि कटिहार में 15-20 सालों के अंदर कोई भी उद्योग नहीं लगा। इसमें जो है कोई भी ऐसी कोई योजना केंद्र के द्वारा भी नहीं चली है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति यहाँ के निवेश करें। और ये जो कहा जाता है कि पिछली सरकार की गर्मी, वो बात नहीं है।
बहुत सी फैक्ट्री बंद होने का कारण उनका निजी विवाद भी है। निजी विवाद, आपसी घर में उस विवाद के चलते भी बहुत फैक्ट्रियां बंद हुई है। हम पूछते कि आरबीएचएम जूट मिल सरकार की थी, उसमें क्या रंगा लगता, लेकिन मैनेजमेंट अच्छे ढंग का नहीं था, इसलिए वो आज जूट मिल बंद है। दो फ्लावर मिल थी, क्यों बंद हुई भाई? कोई सरकार की गलती के चलते नहीं बंद हुई है, उनकी जो व्यवस्था थी वो आपस में चरमरा गई, इसलिए आज वो उद्योग बंद। लेकिन हम चाहेंगे कि कटिहार की जनता जिसे भी सांसद चुने, निश्चित रूप से कटिहार जो औद्योगिक नगरी कहलाता था उसका स्वरूप कटिहार में दिखे आने वाले दिन। चलिए छाया जी, एनडीए की भी यहाँ सांसद रहे हैं, निखिल जी 15 साल लगातार सांसद रहे हैं, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में या फिर अब जो सांसद आपके कटिहार से उम्मीदवारी कर रहे हैं, क्या लगता है कि नया प्रोजेक्ट के दिशा पर क्या पहल होगा और कटिहार के लोगों को कितना लाभ मिल पाएगा इस वक्त? अभी बता रहे थे उद्योग का निजी मामला, अगर निजी मामला उद्योग का ऐसा होता तो उद्योग पहले खुला नहीं रहता और बंद हुआ तो चलिए निजी मामला ही मान लेते हैं। लेकिन उसमें अभी के सांसद की क्या पहल हुई? सारे राजनीतिक दल ने मिल चालू करवाने के लिए पहल किया, लेकिन मिल तो चालू नहीं हुआ। इसमें अभी तो होना ही नहीं है। अभी के सांसद जी तो कुछ किए नहीं, अब होना ही नहीं। चलिए और आगे औद्योगिक नगरी बने। जहाँ तक पहले का सवाल है उद्योग बंद क्यों हुआ, उस पर आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि सबसे कोई भी उद्योग चलाने के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा बिजली, और बिहार में बिजली नहीं दिखती थी, बिजली की बहुत भारी किल्लत थी। 1 मिनट आपको रोकेंगे, हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निक्कू सिंह जी, बताइए क्या सवाल है आपका निक्कू जी और किन से है? मेरा राजीव जायसवाल जी से सवाल है कि उन्होंने कहा कि लोगों को मुफ्त में खाने की आदत हो गई है, तो क्या वो इस बात से सहमत हैं कि भाजपा या वर्तमान सरकार के द्वारा जो अंत्योदय योजना लाई गई है वो गलत है, उसकी सरकार की नीति गलत है? उनका कहना है कि जो मुफ्त में खाने की जो बात आपके द्वारा की गई कि मुफ्त में खाने की आदत है, इससे क्या लगता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो गलत दिशा पे जा रही है या फिर 100% जो योजनाएं मुफ्त में चलाई जाती है वो कोई भी सरकार हो वो गलत योजना है। अगर आप मुफ्त में किसी आदमी को कोई चीज का आदत डालेंगे तो कोई आदमी ना परिश्रम करेगा ना कमाने, गरीबी उसी के कारण है। अगर आप गरीबी को खत्म करना चाहते हैं तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आप उठा रहे हैं उद्योग का बात, आप उद्योग चलाते हैं, उद्योग में काम करने के लिए नहीं जाते हैं, चाहते हैं हम बैठ के पेमेंट लें, तो उद्योग चलेगा कैसे? आज जो स्थिति बन गई है, कोई भी सरकार हो, मुफ्त की योजना बंद होनी चाहिए। चलिए, मुफ्त की योजनाएं बंद होनी चाहिए, ऐसा राजीव जायसवाल जी का कहना है। मुद्दे की बात आप देख रहे हैं, सीधा प्रसारण केबीसी न्यूज पर। तरुण जी, ये बात कहूंगा कि वो मुफ्त की योजना नहीं है, कम कीमत पर लोगों को अनाज दिया जाता है, मदद किया जाता है। आज आप गैस ले रहे हैं ना, गैस का दाम बाजार में 800 है, उस वक्त सब्सिडी आपको मिल रही कि नहीं मिल रही है? आपको 300-250 रुपये की सब्सिडी सरकार दे रही कि नहीं दे रही है? आप उस जो गैस की रेट है 500 रुपया के लगभग अभी जो वर्तमान में, तो ये सरकार की एक नीति होती है कि कम से कम गरीब लोगों को या हर लोगों को, ये भारत सरकार, अनाज और गैस में अंतर है। नहीं गैस एक बार लेने के बाद उसको दूसरा बार पैसा देना पड़ता है, पूरा पैसा। लेकिन अनाज एक ऐसा है कि 2 रुपया तो 2 रुपया, हमको 2 रुपया में मिल रहा है तो हम 10 रुपया के लिए काम करने क्यों जाए? देखिए, गरीबी और बेरोजगारी तो यहाँ दृष्टिकोण से भी देखा जाए, अगर 2 रुपया में मिल रही है तो 10 रुपया क्यों खरीदे? नहीं, सेव नहीं हो रहा है, उसको काम करने की प्रक्रिया उस पर खत्म हो रही है कि नहीं, हम क्यों कमा रहे हैं? गरीब और गरीब होते जा रहा है। ये योजना किसी भी सरकार में नहीं चलनी चाहिए। अपने आपको कमाएंगे नहीं, स्किल के बराबर समझेंगे नहीं, वो कोई रोजगार सीखेंगे नहीं, वो कोई काम करना नहीं चाहेंगे। छोटे छोटे जो उद्योग थे, यही कारण है कि बंद। चलिए, मुद्दे की बात देख रहे हैं, सीधा प्रसारण आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ 4 गेस्ट हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे
हम इन 4 गेस्ट हमारे साथ जो बैठे हैं इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे कॉलर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं। आपका अपार सहयोग मिल रहा है केबीसी के मुद्दे की बात कर लेते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। देखते रहिए केबीसी न्यूज। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जीडी गोयनका स्कूल, विश्व स्तरीय शिक्षा का बिहार में एकमात्र स्कूल, सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता, केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस। Parents sending their child outside Bihar because of no good schools can now send their children in GD Goenka Public School in Ranipatra, Purnia, one of the best schools in the country, and help them become an all-rounder with their world-class facilities. The faculty at GD Goenka has been specially trained and called from outside to ensure high-quality education and to include practical studies. Apart from classroom studies, the students at GD Goenka put their learning in practical with the help of well-equipped labs. Beside academics, GD Goenka offers to a huge variety of extracurricular activities. Your child will have an opportunity to get well trained in horse riding, archery, shooting, squash, lawn tennis, billiards and basketball. Not only this, your child will even get an opportunity to enhance himself and herself in the field of music and dance. The students will get professionally trained to play various instruments like guitar, harmonium, flute. They will even learn various forms of dance like Bharatnatyam, Kathak, jazz and salsa. Your child will even have an access to a wide variety of books at GD Goenka's vast library where knowledge meets the student. The school provides a splendid facility of hostels for those who wish to stay in the campus, giving the environment of home away from home, is rich in nutrients, and there is a regular supervision over the quality of food, keeping in mind the health of residential and non-residential students. During summers, your child will not complain about the heat anymore, as GD Goenka is fully air-conditioned, so are its buses. At GD Goenka, the enthusiastic environment and the constant guidance from the teacher will set your child's future to a journey of success. As GD Goenka follows the ideology of no child left behind. To see your child prosper, please contact GD Goenka Public School, Matia Chowk, Ranipatra, Katia Purnia Road, Purnia. The toll-free number is 1800-3131-2222. The phone numbers are 76728 22222 or 23 or 24. सती सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल एलईडी लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट आरओ प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता, सती सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल 9297979700। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। केबीसी ब्रॉडबैंड, सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित केबीसी ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार या केबीसी न्यूज कार्यालय, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। हमारे साथ 4 गेस्ट बैठे हुए हैं। कॉलर्स का भी लगातार फोन आ रहा है और लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कटिहार में विकास कितना हुआ और विकास पुरुष के नाम पर सांसद किसे चुना जाए, ये सवाल कटिहार के लोग जानना भी चाहते हैं। और हमारे एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं। राजीव जायसवाल जी हैं, डॉक्टर रंजना झा हैं, छाया तिवारी जी हैं और श्यामलाल अग्रवाल आरजेडी के नेता हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कटिहार में अब तक का डिबेट में। ये जो मुद्दा है कटिहार का, एक मुद्दा है जो उद्योग कटिहार में कभी रहा करता था, आज उद्योग विहीन हो चुका है कटिहार। दूसरा, पलायन और कटाव को लेकर कोई ठोस कदम किसी भी पॉलिटिकल नेताओं के द्वारा नहीं की जा रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे स्थानीय प्रतिनिधि हो। ये मुद्दा आज तक अधूरा सा रह गया है। तीसरा मुद्दा जो बताने जा रहे हैं वो है ट्रेन। कटिहार में ऐसी कई ट्रेन थी जो कटिहार से ही खुलती थी, लेकिन आज हालात ये है कि पिछले कई वर्षों से कई ट्रेन को स्थानांतरित कर दूसरे जगह से खोलने का काम किया जा रहा है। उस पर भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई। चलिए इन्हीं सवालों के साथ हम फिर से एक बार इन तमाम 4 गेस्ट का हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं और हम बात करते हैं राजीव जायसवाल जी से। राजीव जी, एक बरमसिया से सवाल आया था कि कटिहार में कई ऐसे ट्रेन थी जो खुलती थी, लेकिन आज वो दूसरे जगह से खुलने लगी है। इस पर किसी जनप्रतिनिधियों के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया, प्रयास नहीं किया गया कि ट्रेन कटिहार से ही खुलनी चाहिए। आपका क्या कहना है? आपका भी सांसद। नहीं, ये बहुत अच्छा मांग है कि कटिहार से कुछ ट्रेन खुलनी चाहिए, क्योंकि कटिहार चारों तरफ से गांव देहात से घिरा हुआ जगह है और यहाँ से बहुत से लोग अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में अपने रोजी रोजगार के लिए भी जाते हैं। ट्रेन यहाँ से खुलनी चाहिए, लेकिन ट्रेन क्यों गई यहाँ से आगे क्यों गई, इस इशू पर हम बहुत बार जोनल मेंबर रहे हैं, तो हमारी जीएम वगैरह से बात हुआ करता था। तो उसमें है क्या कि आज जैसे कैपिटल एक्सप्रेस यहाँ आती थी दिन के 7 बजे और शाम तक दिन भर बैठा रहता था, उससे रेवेन्यू नहीं आता था। उसको बढ़ा के गुवाहाटी या कामाख्या या एनजेपी 3 जगह किया गया कि सरकार का कुछ रेवेन्यू आवे, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यहाँ से ट्रेन खुलनी चाहिए। यह हम लोगों का मांग शुरू से रहा है, आज पूरा नहीं हो पाया। आपके भी सांसद रहे हैं, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। तारिक साहब भी रहे हैं, लेकिन आज तक ये पूरा नहीं हो पाया। ये कटिहार के लिए एक नई बात तो नहीं है, लेकिन अब जो सांसद हो उसमें आपको लगता है कि इस तरह के काम में लोगों को दिलचस्पी लेनी चाहिए। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रेन यहाँ से नहीं खुलने से क्या लगता है कि कटिहार के लोगों को कितना नुकसान हुआ होगा, सफर करने में कितना परेशानी हो रही होगी? नहीं, काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ कोई ऐसा फ्लाइट का भी कोई सुविधा नहीं है, जो आदमी ट्रेन नहीं चल रही तो चलो फ्लाइट से चले जाते हैं, तो काफ़ी परेशानी थी। यहाँ से बहुत लोग जाते हैं ना, दिल्ली, बॉम्बे, सब जगह। यहाँ तो रोजगार है नहीं, यहाँ तो कुछ रोजगार है ही नहीं, सब लोग बाहर ही जाते रहते हैं। कभी भी आप देखिए स्टेशन पे जाके कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो ट्रेन नहीं रहने से तो उन लोगों को काफ़ी असुविधा होती है। और कुछ जैसे दिल्ली वगैरह राजधानी है, उसमें तो सब लोग सफ़र नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है जिन ट्रेनों का नाम कहा गया वो ट्रेन कटिहार के लिए बहुत जरूरी है। क्या लगता है कि अब जो सांसद कटिहार में जो भी बनेंगे, क्या अपेक्षा है कटिहार के लोगों को? आप क्या अपेक्षा करते हैं एज ए एक्सपर्ट? नहीं, मैं तो उनसे बहुत उम्मीद रखूंगी, जो भी बनेंगे सबसे पहले तो जितनी सारी हमारी समस्या है उनको ध्यान दें। मेरा अपना ऐसा सोचना है, उसमें कटिहार में रहने की हमेशा ज़रूरत नहीं है कि हमेशा वो यहाँ मौजूद रहे, हमेशा चेहरा दिखाते रहे, उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। वो जब आए, जब रहे तो वो काम करें। हम लोगों की जो भी समस्या है उस पर वो ध्यान दें और वहाँ जा करके अपनी बात वहाँ रखें, सरकार के पास जाके रखें। तो मुझे लगता है कि ट्रेन यहाँ से होनी चाहिए और जो समस्याएं हैं वो समाधान होना चाहिए। लगभग 20 साल मेरा भी यहाँ हो गया, लेकिन 20 साल में मुझे कुछ ज्यादा चेंज कुछ भी नहीं दिख रहा है ज्यादा, जो कि 20 साल एक काफी लंबा वक्त होता है। आदमी की अच्छी एक जिंदगी जो होती है वो बीत जाती है सारी, और उसमें सभी नेता है ऐसा नहीं। आज तक आपकी नजरों में लेकिन अब उम्मीद करती हूँ, अब उम्मीद करती हूँ कि इस बार जो आए, हाँ इस बार जो आए तो वो पूरा करें। चलिए, डॉक्टर रंजना झा का कहना है कि अब जो सांसद हो, कटिहार में जो भी जन समस्याएं हैं, जो भी मूलभूत समस्याएं हैं आम लोगों के लिए, उसके लिए सोचा जाए, ऐसा सांसद
और मेरा एक और इम्पोर्टेंट जो भी सांसद बने उनसे है कि एक जो है पार्क की आवश्यकता काफी ज्यादा है, जहाँ मॉर्निंग वॉक किया जाए। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं है। और तो मैं भी तो कुछ दिन से 4-5 दिन से टहलने निकल रही हूँ, तो इतना मुश्किल होता है कहाँ टहलने जाऊँ। रोड पे इतनी गंदगी है, इतना स्मेल करता है कि जा नहीं सकते। तो एक अच्छा पार्क होना चाहिए, बहुत जरूरी। चलिए, मैडम का जो भी सांसद बनने के लिए जा रहे हैं, अगर आप हमारा मुद्दे की बात देख रहे हैं तो मैडम का यह ख्वाहिश जरूर पूरा किया जाए। चलिए अग्रवाल जी, ट्रेन की बात हो रही थी, आपके भी सांसद रहे 5 साल, पिछले कई वर्षों में भी सांसद रहे हैं, 15 साल नहीं रहे, अब मंत्री भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं। ट्रेन यहाँ से खुलती थी और आज दूसरे जगह से खुल रही है, कोई प्रयास नहीं किया गया। यहाँ पर पलायन की स्थिति जबरदस्त है, लोग पलायन कर रहे हैं मजदूरी को लेकर, ट्रेन की आवश्यकता है, ऐसा महसूस होता है। नहीं, ऐसी बात है कि जैसे अभी राजू जी ने कहा कि मंत्री भी रहे हैं, निश्चित रूप से लालू जी मंत्री रहे हैं, लेकिन उसके पूर्व के भी सांसद मंत्री रहे हैं। नहीं, रेल मंत्री नहीं रहे हैं, यहाँ के लोग रेल मंत्री नहीं रहे हैं, दोनों में से कोई नहीं रहे। लालू जी रेल मंत्री रहे हैं। अगर इतिहास देखिएगा, 15 साल तक कंटिन्यू जो सांसद रहे, जेडआरयूसीसी के मेंबर भी रहे हैं राजीव जी। नहीं, राजीव जी तो खैर भाई, राजीव जी तो हमेशा कटिहार के इसकी लिए सोचते ही है, इसमें थोड़ी कोई दो बात है। लेकिन 15 साल एक बहुत बड़ा पीरियड मिला जो उस समय के जो सांसद थे, और उसी समय शाहनवाज जी किशनगंज से सांसद थे। वो इतने ताकतवर थे कि इस दानापुर को ट्रेन को उठा के अपने किशनगंज ले गए, और यहाँ के सांसद राजधानी को ले गए, राजधानी को। माने ये एक मजबूत सांसद की जरूरत है, ऐसा नहीं है। 15 साल के पीरियड में जितनी ट्रेनें कटिहार से खुलती थी, वो सारी ट्रेनें अगल बगल के सांसद, मैंने पिछले दिनों जब तारिक साहब सांसद बने थे, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि उनकी भी एक गलती है, उनसे मैंने मांग की थी कि वैशाली ट्रेन जो कोई जमाने में कटिहार से चलती थी और अभी वो दिल्ली से आती है, बरौनी तक रुक जाती है, आप उसको कटिहार तक करवा दीजिए। लेकिन देखिए, पप्पू यादव जी ने उस ट्रेन को उठा के सहरसा ले गया। मजबूत सांसद, ऐसे मजबूत सांसद को जो हमारी चीज जाए नहीं। जूट मिल खुले, कौन नहीं चाहेगा कटिहार की जनता? जूट मिल, पहले कटिहार का बाजार हम लोग जो बचपन में देखते थे, कटिहार जूट मिल और फैक्ट्री और बीच में जूट मिल, और इन दोनों को रविवार को जब मजदूर जब निकलते थे बाजार में, बड़ा बाजार मंगल बाजार में, तो लगता था कि कटिहार का कोई बाजार है। ये दो जूट मिल के चलते लोगों का व्यापार चलता था, ये कटिहार की पहचान थी जूट मिल। आज ये भी बंद है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो ट्रेनें गई है, आने वाला जो भी सांसद बने, निश्चित रूप से हमारी ट्रेन वापस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कटिहार से काफ़ी संख्या में लोग दूसरे जगह कमाने के लिए जाते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आने वाले सांसद से उद्योग धंधे के ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान दें कि कटिहार नगरी जो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानी जाती, काटी फैक्ट्री थी, सिलाई फैक्ट्री थी, जूट मिल थी, फ्लावर मिल थी, सारी बंद है आज। ये क्या स्थिति है? किसी सरकार को मतलब कुछ सोचना होगा, यहाँ के लोगों को भी जन आंदोलन की जरूरत है। यहाँ कम से कम जन आंदोलन करे, इन लोगों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर। किसी एक प्रतिनिधि को दोष की बात नहीं, एक प्रतिनिधि को दोष देने की जरूरत नहीं है। राजीव जी ने कहा ना कि बस स्टैंड चला गया वहां से और आज तक नहीं गया, बात सही है। क्यों नहीं लोकल प्रतिनिधि भी इस पर ध्यान दे रहा है कि बस स्टैंड चला गया, 2 करोड़ की कितना करोड़ रुपया खर्चा हुआ वहां पर, एक बस आज वहां नहीं जाती है। बस आके हमारे अरगड़ा चौक के पास खड़ी होती है। आरोपी की वजह से वो बस स्टैंड शायद शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, जो गौशाला में अरे भैया गौशाला गुमटी बना क्यों वहां? तो फिर बस स्टैंड ठीक बोले कि बस स्टैंड बना क्यों? तो ये हमारी पैसा जो नजायज में गया, निगम के मेयर साहब को भी इस पर ध्यान देना चाहिए था वो है। इसलिए मांग करेंगे आपके केबीसी के माध्यम से, ठीक है, जनप्रतिनिधि का चुनाव है, आम जनता जिसे चुने, हम जनता का स्वागत करते हैं। छाया जी, कटिहार में जो भी सांसद रहे हैं, चाहे निखिल चौधरी रहे हैं, तारिक अनवर वर्तमान में रहे हैं, क्या लगता है कि जो भी काम सिर्फ प्रयास में ही समाप्त हो जाती है, वो पूरा नहीं हो पाता है? ट्रेन की बात अगर करें, प्रयास किया जा रहा है, हुआ नहीं। जूट मिल खोलने की बात करें, प्रयास किया जा रहा है, हुआ नहीं। क्या लगता है आपको कि इस प्रयास में कौन जिम्मेदार है? प्रयास तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं। इन कटिहार के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। कटिहार के लोगों को लाभ नहीं, ये कटिहार की जन समस्या है और इसको लोकल मुद्दे पर ही लड़ना चाहिए।
अगर लोकल मुद्दे से ये लड़े जाए, कटिहार की जो रोजगार है, आप जूट मिल और फ्लावर मिल देख रहे हैं, मैं तो मोमबत्ती से लेकर साबुन फैक्ट्री तक बंद देख रहे हैं जी। वो छोटे छोटे उद्योग क्यों बंद हुए? आज की जो आधुनिक युग है, आप पहले और आज के युग को देखेंगे तो आज जितने आप जो संचार का माध्यम है पहले से 4 गुना क्या 20 गुना बढ़ा है। आज यहाँ पे कुछ अगर होता है, खांसी भी होती है तो पूरा विश्व देख सकता है, इतने संचार के माध्यम बढ़े हैं। पहले वो नहीं थे, पहले लोग अपना रोजगार करते थे। और आज के युवा जो हैं वो सोचते हैं हम पढ़ेंगे लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, IPS। लेकिन कटाव पीड़ित लोगों को, बेरोजगार लोगों को देखने के लिए नेताओं के पास टाइम नहीं होती, या फिर उसके लिए क्रांति तो आई है, उसके लिए सक्षम चाहिए रोजगार। नेता सक्षम नहीं चाहिए, नेता तो बिल्कुल ही सक्षम चाहिए जो रोजगार को लाए। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही काम देश में कर रहे हैं कि वो रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, वो रिलीफ नहीं बांट रहे हैं। कटिहार की ओर उनका ध्यान नहीं था, कटिहार की ओर ही ध्यान है। सभी पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं और सभी को स्किल हो, स्टार्टअप हो, मुद्रा लोन योजना हो, चाहे गृहिणियों के लिए। आज गृहिणियां हमारी जो धुएं में काम करती थी उनके लिए सोचिए। आप सोचिए कि अमीरों के पास से पैसा निकलवाना कितना बड़ा बात है, गरीबों से तो सब लूट लेता है। जितना नेता बनता है कहते हैं गरीबों की हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन किसी ने व्यवस्था नहीं किया। आज मोदी जी के आह्वान पर उज्ज्वला योजना जो चल रही है, जितने सक्षम लोग हैं वो सब्सिडी छोड़ दिए, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे अग्रवाल साहब? बड़े लोगों ने सब्सिडी छोड़ दिया और ये बहुत बड़ी उजाला योजना काफी हिट पर है बीजेपी सरकार की। क्या तिवारी का कहना? अरे भैया हम कहाँ बोल रहे हैं, लेकिन गरीब के पास पैसा होगा तब ना गैस खरीदेगा। आप दे तो दिए, आप उसका रिकवरी भी करेंगे आने वाले दिन में, लेकिन जो गैस की आज दाम की स्थिति है, 900 रुपया गैस सिलेंडर हो चुका है। आज कितने लोग खरीद के ले जाते हैं गैस सिलेंडर। हम उस योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने कहा नहीं, खास सुरक्षा बिल का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। योजना सरकार की सही है, लेकिन उस योजना का ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट हो। उनको एक मिनट उनको महीना में हम चाहेंगे, मांग करेंगे आपकी तरफ से कि महीना में एक गैस सिलेंडर उनको फ्री मिले। एक गैस सिलेंडर में जिनको उज्ज्वला योजना के द्वारा गैस सिलेंडर दिया गया है, महीना में एक गैस सिलेंडर फ्री देने की व्यवस्था हो, तब ये योजना को सफल योजना बने। ये कहाँ एकदम नहीं होनी चाहिए। वो मेहनत करके देखिए मेहनत तो आज कोई नया नहीं कर रहा मोदी जी के राज में, मेहनत तो जमाने से लोग करते आ रहे हैं और करना चाहिए। मेहनत तो और मेहनत कर रहा है, आपको मेहनत करके देखिए कितना फायदा है अपना ही मेहनत करके। गरीब आदमी, अरे भैया कोई देखने नहीं गया कि वो गरीब की अमीर है। समझो ना, लालू यादव भी एक गरीब का बच्चा था और आज भी था। खरबपति है, खरबपति मोदी जी की तो रोज 10,000 की ड्रेस पहनते हैं। समझो ना, नहीं 10,000 की ड्रेस पहनते हैं, वो पहनेगा आज के देश में। वैसे प्रधानमंत्री क्या जरूरत जो रोज नई ड्रेस पहन के आते हैं। अरे ऐसे प्रधानमंत्री किस लिए जरूरत की? देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित नहीं है एकदम 100% सुरक्षित है। आपको एक उदाहरण जितना आतंकवाद बढ़ा है, आपको ये बताइए, जिस समय जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा था, आप लोग कहते थे मोदी जी भाषण में देखे गए कि पहले बाप बेटा ने लूटा, फिर बाप बेटी ने लूटा, और उस बेटी के साथ आप सरकार बनाए महबूबा मुफ्ती के साथ। और आज वही के बारे में जानने के लिए क्या क्या जानने के लिए राजनीति कर रहे हैं और आज वो बोल रही है और आप चुप बैठे हुए क्या बात बोल रहे हैं? आज आपने जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, आज जो आपने आतंकवाद के साथ आप बैठ के फोटो खिंचाते हैं, जो प्रधानमंत्री के दावेदार है। कोई आतंकवाद के साथ फोटो, हम लोग आतंकवाद को खत्म करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ही प्रयास किया। इस प्रधानमंत्री के द्वारा जितने काम किए गए, मैं नहीं समझता कि कभी भी आप नहीं देखेंगे, हमने देखा कि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। आज आपको 20 साल हो गया कटिहार में, क्या आपका नर्सिंग होम नहीं चल रहा है? क्या आपके नर्सिंग होम में आपको दिखा अपने बूते चल रहा है? ना आपकी सरकार की बूते चल रहा है, इसी बिहार में चल रहा है।
एज ए डॉक्टर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एज ए डॉक्टर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जो प्रधानमंत्री की योजना है वो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, उसके तहत हर 9 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख को प्राइवेट डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर तो देते ही है सुविधा, प्राइवेट डॉक्टर को भी जगह जगह भेजा जाता है, वहाँ चेकअप देखा जाता है। कम से कम एक बार तो कम से कम जरूर आ जाती है, उसकी वजह से सुरक्षित रहे। उसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी, माताओं की जो प्रेग्नेंट है उनकी मृत्यु दर में और बहुत कमी आई है। एक एज ए डॉक्टर मैं ये एक बात तो जरूर कर रही हूँ, कन्या योजना बहुत योजना हमेशा चलते आई है, ऐसी बात नहीं है कि पहले की सरकार में योजना नहीं चलती थी, सबको पता है। अरे सबको पता, हम लोग को पता है बहुत योजना। अब आप बोल रहे हैं कि लोन दिया जा रहा है रोजगार के लिए, पहले जिला उद्योग केंद्र में नौजवानों को अप्लाई करते थे प्रधान रोजगार योजना, क्या उस समय नौजवानों को लोन नहीं मिलता था पैसा काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए? और आज क्या नया मिल रहा है? क्या मिलना तो चलिए, थोड़ा भी ज्यादा होगा तो ज्यादा हो जाएगा। अरे भैया तो कीमत भी तो बढ़ी है। जो मकान 20 साल पहले अगर 1 लाख में बना है, आज उसको बनाइएगा तो 5 लाख लगेगा। तो आपको बढ़ाया है तो क्या दिक्कत है? हम उसका स्वागत करते हैं। मजबूर सरकार थी। अरे मजबूर कोई नहीं थी। 10 साल नहीं, कोई मजबूर सरकार नहीं है, तानाशाह की सरकार है। ये बोलिए, कोई नहीं डर रहा। अरे डरता तो कोई चुनाव नहीं लड़ता, मजबूती से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज एक नारा चला है, आज प्रधानमंत्री जो है वो तानाशाह के साथ साथ ईमानदार भी है। आज कभी करना पड़ता है। एक चीज बताइए, इससे पूर्व के सारे घोटाले प्रधानमंत्रियों के रीजन में हुआ। की जांच है। आज महागठबंधन का नेता जिसको कहते हैं, किसी पार्टी में नहीं है। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि हम सबको जेल भेजेंगे, कितने कांग्रेस के नेता को जेल भेजा है? अभी चल रही है प्रक्रिया। फिर बात सुनिए, अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो 15 साल तक रहे, रमन सिंह, उनका दामाद डॉक्टर है और 100 करोड़ रुपए घोटाला में पकड़ा गया है और भागते फिर रहा है। जाएगा, जेल जाएगा, अगर साबित होगा तो जाएगा। नहीं पकड़ा। ईमानदार किसको कहा जाता है? नहीं, सारे घोटाला उन्हीं के रीजन में हुआ। मोदी बाबा कोई घोटाला नहीं, सारे घोटाले उन्हीं में हुआ। हवा घोटाला, पानी घोटाला, जमीन घोटाला, यहाँ तक कि आपका भी घोटाला हो गया। बहुत अच्छे थे, अगर उनको काम किया जाता तो बेस्ट प्रधानमंत्री होते, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया। बहुत अच्छे रिमोट प्रधानमंत्री नहीं चाहिए इंडिया को। स्थिर से मेरी बात सुनिए, आपकी सरकार नागपुर से चल रही है और आप लोग आपकी सरकार किस तरह से चल रही थी? इटली से चल रही थी। आपकी सरकार इटली से चल रही थी। आपकी तरफ है। लेकिन मैं पूछता हूं कि आप लोग कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, क्या मोहन भागवत जी है ना आरएसएस के प्रमुख, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी देश के अंदर, कभी उनको वो सुरक्षा लेके चले थे कि हमारे पर खतरा है? लेकिन आज क्या स्थिति है? आज उनको भी पीछे के सरकार का बोया हुआ है, जिसके चलते बचना पड़ रहा है। पीछे के सरकार का बोया हुआ है, जिसके चलते चलना पड़ रहा है। आज मध्य प्रदेश में 9 करोड़ रुपए पकड़ाए गए हैं। कहाँ से पकड़ाए? रमन सिंह कहाँ से चौकीदार चोर है, योजना का पैसा खाया। चौकीदार चोर है, क्यों योजना ये नारा लग रहा है? मुख्यमंत्री के दामाद के 100 करोड़ रुपए को दवाई घोटाला में पकड़ा गया है। हाँ तो उसको जेल होना चाहिए। नहीं, जो जेल होना चाहिए। कोई नहीं, जो भ्रष्टाचारी थे वो डर रहे हैं कि एक सवाल लेकर आते हैं। ईमानदार प्रधानमंत्री का वहां से चलता है वही यहाँ पर कटिहार में जल जमाव की समस्या सबसे ज्वलंत समस्याएं हैं। आज तक जल जमाव की समस्याएं काफी ज्वलंत समस्या है। इसको लेकर पिछले 5 वर्षों में हो, पहले हम आपसे जान लेते हैं, इसको लेकर क्या नीति बनाई गई कि कटिहार में जो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जल नहीं निकल पाते हैं? जी, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका विशेष ध्यान राज्य सरकार को देना चाहिए।
ये राज्य सरकार का बहुत बड़ा एक मुद्दा है। स्थानीय विधायक को भी ध्यान देना चाहिए, मेयर को ध्यान देना चाहिए। उन लोग के प्रयास से निश्चित रूप से ये निदान हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं रोड इतनी ऊंचे बन रही है और दूसरी रोड नीचे। आज आपको बता दूं, मैं बनियाटोला में पीसीसी रोड का ढलाई हुआ है, जो बनियाटोला रोड बनी है दूसरे तरफ की रोड नीचे हो गई है। अब वहां तो जल जमा होगा ही। आप उसका एक मैप तैयार कीजिए कि शहर के नाला का और शहर की रोडों का कम से कम एक रूपता हो, तो जल जमाव की समस्या नहीं होगी। क्या कहेंगे, 15 साल भी आपकी बीजेपी की यहाँ पे सांसद रहे हैं, जल जमाव की समस्या कई वर्षों से है, क्या पहल की गई इसको लेकर, क्या नीति बनाई गई? जल जमाव के लिए एक साफ सुथरी अच्छी नीति बननी चाहिए। सड़कें जो बने उसके नीचे नाला हो, इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार को अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। और यहाँ के जो मेयर है उनको भी इस बात का ये होना चाहिए। ऐसे तो वो अपने तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं, वो सफल कितना है और नहीं है वो कटिहार की जनता अभी बयान कर रही है। कुछ हद तक सफल भी हैं और कुछ असफल भी हैं। ऐसे प्रयास तो वो अपने तरफ से पूरी तरह से कर रहे हैं कि इस कटिहार स्वच्छ, सुंदर और आदर्श कटिहार बने। स्वच्छ, सुंदर और आदर्श कटिहार तभी बन पाएगा जब कटिहार साफ सुथरा, जो प्रधानमंत्री का नारा है स्वच्छ वो कटिहार शहर में तो कहीं दिखता नहीं है। मैडम क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, थोड़ा प्रधानमंत्री का एक नारा कटिहार में वो लागू नहीं होता। नहीं, एकदम पूरी तरह से नहीं, ऐसा है कोई शक की बात है। पहले से काफी साफ सुथरा, पहले से तो बहुत ही अच्छा है। हमारा भारत स्वच्छ भारत पहले भी अपने स्वयं हाथ में झाड़ू ले लिए, अमल होता हुआ दिखा। क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चे को देखती हूँ, मैं एक बार सफर कर रही थी गाड़ी में, तो बोला कि नहीं फेंकना नहीं है यहाँ से। ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि स्वयं लोग जागरूक हो गए, एकदम पूर्ण रूप से चेंज हुआ है। जो प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है स्वच्छ भारत, स्वच्छता के प्रति तो सभी लोग सजग हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि सरकार भी चाहती है और आम जनता भी चाहती है। और निश्चित रूप से कटिहार स्वच्छ शहर बने। कब तक बने? पिछले 20-25 वर्षों में तो नहीं, वो तो जल जमाव की जो स्थिति है, माने बोलने के लिए तो बहुत बात है जी। लेकिन मैं एक बात डॉक्टर साहब की बात का समर्थन करता हूँ कि मैं भी सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, एक भी अच्छा पार्क इस कटिहार शहर में नहीं है। भाई साहब पार्क है, नहीं पार्क है। रेलवे ने इको पार्क बनाया, रेलवे नहीं आम आदमी के लिए भी है, वो आप जा सकते हैं वहाँ। लेकिन ये सरकार रेलवे का पार्क बना है, उसमें जा सकते हैं। उसका जो नीति निर्धारण किया है वो गलत है कि आप 51,000 रुपया दीजिए तब जाइए। तो जनप्रतिनिधि और जनताओं को इसके ऊपर जागरूक होके आम आदमी के लिए वो कैसे हो, ये आंदोलन करनी चाहिए। वो कितना दूर है शहर से, शहर में उतना जगह भी नहीं है ना, वही बता रहे हैं। शहर में कहीं उतना जगह भी रहे तो ना पार्क में। उस नीति को बदलने के लिए संघर्ष करनी चाहिए। पूरे डिबेट में ये सामने आया है, अग्रवाल जी का कहना है और मैडम रंजना झा का कहना है कि एक पार्क बनना चाहिए ताकि हम लोगों के जैसे लोगों को मॉर्निंग वॉक का जगह मिलना चाहिए। तो क्या लगता है कि सिर्फ ऐसे लोगों के लिए या फिर नवयुवकों के लिए पार्क बनना चाहिए? नहीं, पार्क सबके लिए बनना चाहिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन। पार्क रहेगा तो लोग, हमारी बहनें, हमारे माँ सब घूमेगी फिरेगी और सोशलाइजेशन भी होगा कितना उसी समय कम है। हम आखिरी सवाल आप लोगों से करते हुए इस मुद्दे की बात को हम समाप्त करेंगे। कटिहार में मूल रूप से अगर देखा जाए तो समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन जो ज्वलंत समस्याएं हैं वो है बेरोजगारी, कटाव, पुनर्वास की समस्याएं और कटिहार में शहर में जल जमाव की समस्याएं। क्या लगता है कि आने वाले सांसद, जो भी सांसद बनेंगे, इस मुद्दे पर उनको ध्यान देने की जरूरत है या फिर अलग हटकर उसको ध्यान देना चाहिए? राजीव जी, 2 लाइन में आप इस सवाल का जवाब दें। नहीं, कटिहार में जो भी सांसद बने इस मुद्दे को जमीन से लेकर, कटिहार से लेकर केंद्र की सरकार, जो भी सरकार बनेगी, पार्लियामेंट तक ले जानी चाहिए कि कटिहार में क्या क्या मूलभूत सुविधा की आवश्यकता है। उस पर आम जनों से राय लेते हुए अपने बातों को पार्लियामेंट तक ले जाए और उसको अमल कराने के लिए काम करे। यही कटिहार की जनता चाहती है। मैडम, आपका क्या राय है इस पर? नहीं, हमारा कहना है कि सिर्फ हम लोग जो है खुद कोई काम नहीं करते हैं। सिर्फ MLA, MP, मेयर सबसे खाली उम्मीद करते हैं। हम लोग को भी काफी सजग रहना पड़ेगा। हम लोग जहाँ तक कचरा फेंक देते हैं, हम लोग जहाँ तक गाड़ी लगा देते हैं।
कितना बड़ा 100 बीच रोड में ही गाड़ी लगा दी और सामान खरीद लगे। इसलिए हम सबों की जिम्मेवारी है कि कैसे हमारा कटिहार स्वस्थ रहे, कैसे साफ सुथरा रहे, विकास हो। हाँ, कैसे विकास हो, सभी की जिम्मेवारी है। चलिए, आपका क्या कहना है मैडम? सही बात है, अगर लोग जागरूक रहेंगे तो कचरा फैलेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक साफ सुथरा रहेगा। अगर हम देख रहे हैं कि कहीं पर कोई गया, बीच रोड में गाड़ी लगा दिया, आने जाने वालों को जाम लग गया, वो कहाँ गया उनको खोजिए। ये सब कुछ अपने से भी स्वयं को जागरूक रहना पड़ेगा। और जो सांसद हो वो कटिहार के निजी मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट जाएं, निजी मुद्दे जो है विकास के, वो पार्लियामेंट जाएं और वहाँ पे अगर ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है तो वैसी व्यवस्था कराएं। ये कोई छोटा मोटा आम चुनाव नहीं है, ये संसदीय व्यवस्था का चुनाव है। और यहाँ से जो चुन के सांसद जाएंगे वो अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो कानून बनावे, लेकिन आम जनों का विकास हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी, आपका भी हम इस पर सब जवाब ले लेते हैं। हम लोग चाहेंगे कटिहार शहर सुंदर शहर बने और इसके लिए जो भी जनप्रतिनिधि है उनको विशेष रूप से कटिहार शहर पर ध्यान देना चाहिए। और खासकर जो हमारे औद्योगिक नगरी के रूप में जो कटिहार था और जितने भी उद्योग यहाँ बंद हो चुके हैं, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा हो या केंद्र सरकार के द्वारा, उन उद्योग को चालू कराने का प्रयास जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। हम उनके साथ हैं। जो भी जनप्रतिनिधि का फैसला इस चुनाव में होगा, हम कटिहार की जनता का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कटिहार में मुद्दे की बात। हमारे 4 गेस्ट बैठे हुए थे। डिबेट में यह क्लियर हुआ कि कटिहार में जो भी सांसद हो, कटिहार के विकास के लिए सोचे, जो भी स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर सोचे, ताकि कटिहार के लोग और शहरों की अपेक्षा कटिहार सुंदर शहर हो, विकास का शहर हो, उद्योग की नगरी से पुनः बहाल हो। ये उम्मीद किया जा सकता है आने वाले सांसदों से। ऐसा यहाँ के जो लोग हैं यह भी सोचते हैं। आज के इस मुद्दे की बात को हम यही समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले हम केबीसी महापरिवार की ओर से अपील करते हैं कि 18 अप्रैल को अपना मतों का प्रयोग अवश्य करें, मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, घर से निकलकर अपना वोट अवश्य गिराएं। कल हम फिर 8:30 बजे रात्रि में नए जनप्रतिनिधियों, एक्सपर्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए तरुण को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे जीडी गोयनका स्कूल, विश्व स्तरीय शिक्षा का बिहार में एकमात्र स्कूल, सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता, केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट। Parents sending their child outside Bihar because of no good schools can now send their children in GD Goenka Public School in Ranipatra, Purnia, one of the best schools in the country, and help them become an all-rounder with their world-class facilities. The faculty at GD Goenka has been specially trained and called from outside to ensure high-quality education and to include practical studies. Apart from classroom studies, the students at GD Goenka put their learning in practical with the help of well-equipped labs. Beside academics, GD Goenka offers to a huge variety of extracurricular activities. Your child will have an opportunity to get well trained in horse riding, archery, shooting, squash, lawn tennis, billiards and basketball. Not only this, your child will even get an opportunity to enhance himself and herself in the field of music and dance. The students will get professionally trained to play various instruments like guitar, harmonium, flute. They will even learn various forms of dance like Bharatnatyam, Kathak, Jazz and Salsa. Your child will even have an access to a wide variety of books at GD Goenka's vast library, where knowledge meets the student. The school provides a splendid facility of hostels for those who wish to stay in the campus, giving the environment of home away from home, is rich in nutrients, and there is a regular supervision over the quality of food, keeping in mind the health of residential and non-residential students. During summers, your child will not complain about the heat anymore, as GD Goenka is fully air-conditioned, so are its buses. At GD Goenka,
The enthusiastic environment and the constant guidance from the teacher will set your child's future to a journey of success. As GD Goenka follows the ideology of no child left behind. To see your child prosper, please contact GD Goenka Public School, Mattia Chowk, Rani Patra, Katihar Purnia Road, Purnia. The toll-free number is 1800-3131-2222. The phone numbers are 76728-22222 or 23 or 24. सती सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल एलईडी लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट आरओ प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें। केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता सती सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल 9297979700। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। केबीसी ब्रॉडबैंड सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित केबीसी ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार या केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220।